کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، سیکھنا علم دی ہے یہ مقصد میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ 9ویں ایپیسوڈ تک پہنچ گیا ہے، نواں مقابلہ ہے۔ 8 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں، مزید 8 ٹیموں نے پہنچنا ہے اور پھر 16 ٹیموں کے درمیان پری کوارٹر فائنل شروع ہوں گے۔ تو اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہلا مرحلہ آدھا ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں 9ویں ٹیم کی تلاش ہے۔ 9th ٹیم کون سی ہوگی ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ آج مقابلہ ہے پشاور اور سیالکوٹ کے ساتھ۔ دونوں شہر بڑے زبردست پاکستان کے شہر ہیں۔ پشاور پختونوں کا ایک جس کو کہیں کہ بڑے ہی بہادر قوم کا ایک زبردست شہر ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت بھی ہے، اور سیالکوٹ کو تو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی والوں کو بھی اس شہر سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے پیر و مرشد جو ہیں قبلہ مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بھی سیالکوٹ کے قریبی ایک علاقے سے تھا۔ تو بہرحال 2 ٹیمیں اور دونوں ٹیمیں بڑا زبردست امید ہے تیاری کر کے آئی ہوں گی۔ دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ آپ نے بھی سلسلے میں اول سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے بھی سوال کرنے ہیں اور آپ کے دروازے تک بھی انشاءاللہ بڑے پیارے تحائف تبرکات کی صورت میں بھجوانے ہیں۔ کیا معلوم آج تحفہ حاصل کرنے والے آپ ہو جائیں۔ آئیے بلاتے ہیں پشاور اور سیالکوٹ والوں کو، تشریف لائیے، ہمارے منچ کی زینت بنیے۔ جی العلم جیت انعام ہے، شکریہ شکریہ، ہار کہتی ہے کہ خود کو پوچھا۔ جی جناب، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ آ کر تشریف فرما ہو چکی ہیں۔ ان کا تعارف بھی لیں گے، کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی جانیں گے، مگر وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ روزانہ سلسلے کے شروع میں ہم تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت قرآن جب بھی ہو توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہمیں سماعت کرنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن
سبحان اللہ عما یشرکون واللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान मजीद हमने सुनी। कारी साहब से मैं चाहूँगा अपना नाम भी बताइए और अपना दर्जा भी बताइए, कहाँ पढ़ते हैं भी बताइए। मोहम्मद यासिर बिन मोहम्मद इलियास अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस फिल इमामत में इल्म दीन हासिल करने की सआदत हासिल हो रही है। माशाअल्लाह। दरस निज़ामी के बाद बहुत सारे स्पेशलाइज कोर्स हैं दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में, और उसमें एक स्पेशल कोर्स तखस्सुस फिल इमामत है, यानी इमामत करते हुए क्या क्या हम काम सर अंजाम दे सकते हैं, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है और ये उसके तालिब इल्म हैं। अल्लाह बेहतरीन इमाम बनना नसीब फरमाए और उम्मत का रहनुमा बनना नसीब फरमाए। नाज़रीन माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद हो गई है। आइए अब टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। कारी साहब को माशाअल्लाह सैयद साहब तोहफा भी दे रहे हैं जी। पिशावर वाले इस्लामी भाई मरहबा कहते हैं आपको, अपने अपने नाम बताएंगे, करते क्या हैं ये भी बताएंगे जी। जी मेरा नाम तौसीफ गनी है, वालिद का नाम फजल गनी। मैं जामिया करीमिया गफूरिया में छठे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह आशिकान रसूल के जामिया से आए हैं, मरहबा कहते हैं। क्या आपके जामिया के तलबा साथ खुश हैं, आप सेलेक्ट हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, बिल्कुल माशाअल्लाह बहुत ज्यादा। और उम्मीद है आज देख भी रहे होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे वाह भाई वाह, दुआएं भी लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल। माशाअल्लाह। चले जनाब दूसरे भाई। मोहम्मद कामरान अत्तारी पेशावर शहर से जी। और मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं या अपना कारोबार करते हैं? अपना काम करता हूँ। अच्छा जनाब। चले दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद शायानुल्लाह जी और बाप का नाम जो है वो हिदायतुल्लाह है, जी। और चौथे दर्जे में पढ़ता हूँ दरस निज़ामी में। अच्छा, चौथे दर्जे में पढ़ते हैं, और कौन से दारुल उलूम में पढ़ते हैं? मैं जामिया कादरिया में। अरे वाह भाई, आशिकान रसूल का आज कितनी खूबसूरत टीम है, और ये दावत इस्लामी की वसत नजरी और ब्रॉड मेंटेलिटी है। सारे आशिकान रसूल हमारे हैं। तो आज पेशावर से 2 तलबा आए हैं, मगर वो दावत इस्लामी के जामियात के नहीं बल्कि आशिकान रसूल के जामियात के, और वो भी हमारे ही जामियात हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लियरिटी भी आपको बताऊं, मैं जब ऑडिशन वहाँ पर हुआ, मेरी खुद हाजिरी हुई थी, तो मैं भी बहुत अरसे बाद पेशावर हाजिर हुआ था, तो वहाँ हमारे अपने जामिया के तलबा भी आए थे। लेकिन जब मैंने ऑडिशन लिया और इनकी जहानत देखी, तो ज़ाहिर नाम ही ज़हनी आजमाइश है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेरिट पर जो वाकई सलाहियत रखते हो उनको लिया जाए। तो आज आपके सामने ये टीम है कि एक कारोबारी इस्लामी भाई हैं और 2 जामिया के तलबा हैं, मगर ये आशिकान रसूल के जामिया के तलबा। बहुत खुशी है आज पेशावर की टीम स्टेज पर है। ये टीम सेलेक्ट कैसे हुई, पेशावर के ऑडिशन में क्या हुआ, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पेशावर में बड़ी बड़ी दूर से इस्लामी भी आए हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, मेडिसिन कंपनी के ऑनर्स भी हैं, मुख्तलिफ सुन्नी जामियात से भी तालिबुल इल्म यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। क्यों? इसलिए कि ज़हनी आजमाइश सीजन 12 का ऑडिशन हो रहा है हमारे शहर पेशावर में। Knowledge is light, the knowledge is light। ये बताइए, किसी के पास 1 लाख रुपए हो, साल गुजर जाए तो कितने रुपए ज़कात बनेगी? 2.5% अच्छा, 10 लाख हो तो फिर ये हो जाएगी 10 लाख 25,000। 25,000। 1 करोड़ हो तो फिर 2.5 लाख। 2.5 लाख बन जाएगी। चले जनाब। Knowledge is light, the knowledge is light। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई। आबाद रजा जिस पे वो मदीना है हमारा,
اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار ہے مولا ہمارا. آپ طرز میں سنائیں 2 شعر چلیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا العلم نور العلم نور. جی پشاور کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. اب آج چلتے ہیں سیالکوٹ کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی میرا نام حافظ محمد بدر آکاش اتاری بن حاجی عارف حسین مرحوم. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ میں درجہ سادسہ کا طالب علم. ماشاءاللہ 6 درجے کے جامعۃ المدینہ سیالکوٹ میں طالب علم ہیں. اگلے بھائی. میرا نام حشام اتاری ہے اور میں فیضان امام حسین رضی اللہ عنہ میں درجہ ثالث کا طالب علم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں LLB بھی کر رہا ہوں. اچھا جناب LLB بھی کر رہے ہیں, جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں. اگلے بھائی. میرا نام محمد ارشد اتاری ہے اور میں ایکسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں. چلیں بزنس مین بھی آئے ہیں, LLB کرنے والے بھی آئے ہیں اور جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی آئے ہیں. ایک خوبصورت مکسچر ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مکسچر پرفارم کیسا کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سیالکوٹ کی ٹیم جب سلیکٹ ہوئی تو کیسے ہوئی. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. ذہنی آزمائش سیزن 12 کے آڈیشنز کا سلسلہ ہے. مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آج ہماری ٹیم پہنچی ہے سیالکوٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا, تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. خورشید تھا کس زور پر, کیا بر کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تیرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس. ان کی رحمت سے 77 سبز کون گنبد سے مرشد ہیں یہ؟ ضیاء الدین مدنی. کہاں ان کی رہائش تھی؟ قطب مدینہ کہلاتے ہیں وہ, مدینہ پاک میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی. ہاں سیالکوٹ کا کون سا علاقہ تھا یہ پتا ہے آپ کو؟ کلاس والا نا, کلاس والا. بد خزرا کی آغوش سکو کے واسطے سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا. ارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ اعلیٰ عیاں حضرت کے نہیں. کلام کے کوئی بھی 3 مقطع سنا دیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. ماشاءاللہ. اب یہ چہرے پہ داڑھی شریف جو ہے نا اب یہ انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کٹے گی. ٹھیک ہے, سلیکٹ ہونا ہو داڑھی پڑے گی. یہ سلیکشن ہو گئی نا آپ کی داڑھی والی. چلیں ماشاءاللہ کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیں. رخ دن ہے یا مہر سما, مقطع سنائے. اے بلبل رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا. حق یہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور العلم نور. جی جناب سیالکوٹ کے آڈیشن میں داڑھی کی نیت ہوئی, داڑھی بڑھتی نظر تو آ رہی ہے ماشاءاللہ. اب چل رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے ناظرین آپ سے سوال کرنے کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس چیز کو خوفناک بلا, تباہ کن بیماری
और इल्म की बरकतों को ख़त्म करने वाली फरमाया। जवाब मिलेगा आपको महनामा फैज़ान मदीना जमादुल ऊला के शुमारे से। अब क्वेश्चन ऑफ द डे एप्लीकेशन ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन से, अगर अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें, इंशाल्लाह आप तक भी हो सकता है तोहफा पहुंच जाए। 5 लोगों को हम रोजाना तोहफा भेजते हैं। सवाल ये है, अतीक किस सहाबी का लकब है? अतीक किस सहाबी का लकब है? 4 ऑप्शन हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आखिरी सिलसिले में हमने एक सवाल किया था, उस सवाल का जवाब क्या था, और कुरानदाजी में देखते हैं कि कौन खुशनसीब है जिनको इनाम मिलता है। शफीक भाई की तरफ चलते हैं जी। बरोज़ क़यामत सूरज कितने मील के फासले पर होगा? तो इसका जवाब ये है कि 1 मील, और बहुत सारे दुरुस्त जवाबात हैं, उनमें से इंशाल्लाह चंद के नाम पेश कर देता हूँ। बिनते अब्दुल मजीद कराची, बिनते रमज़ान अत्तारिया बोरेवाला, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, बिनते असलम, बिनते गुलाम रसूल अत्तारिया उवैस अत्तारी, बिनते नज़र अली अत्तारिया, बिनते नदीम अख्तर अत्तारी, बिनते तारिक हुसैन, अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया शरीफ, बिनते करीम बख्श अत्तारिया, बिनते नोमान, बिनते असगर, बिनते अशरफ, हुनैन रियाज, बिनते नूर अत्तारिया। अब देखते हैं कि किन का नाम आता है। इंशाल्लाह सैयद साहब पर्ची निकालेंगे। अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया शरीफ। चले माशाल्लाह, अब्दुल लतीफ साहब अपना एड्रेस भेजिए तो आप तक आपका तोहफा पहुंचेगा। आखिरी सिलसिला जो हुआ था उसमें कौन सी टीम आगे बढ़ी? सिलसिला बड़ा दिलचस्प था, 3 टीमों के दरमियान हुआ। आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदरी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 12 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। और याद रहे कि आज 2 नहीं बल्कि आज 3 टीमें हमारे मंच पर हैं, और ये वो 3 टीमें हैं जो किसी वजह से कम नंबर होने की वजह से मुकाबले में पीछे रह गई। और अब आखिरी मौका है इन 3 टीमों के पास, क्योंकि इन 3 में से एक टीम ने आगे जाना है। चिश्तियां वालों से सवाल है, बताइए मकबूल हज की कौन सी 3 अलामतें हैं? हज के बाद दिल का नरम हो जाना, नेकी को तरफ माइल हो जाना और गुनाहों से नफरत हो जाना। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सवाल करेंगे डडियाल वालों से, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शव्वाल के 6 रोजे एक साथ रखने चाहिए या अलग अलग रखने चाहिए? बताइए फतवा अहले सुन्नत में इसका जवाब क्या लिखा है? अलग अलग रखना अफजल है। हाँ, अगर किसी ने इकट्ठे भी रख लिए तो जायज है, लेकिन अफजल जो है वो अलग अलग रखना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 24 नंबर है चिश्तियां, 26 नंबर फैसलाबाद, 24 नंबर ही हैं डडियाल वालों के। नमाज जनाजा वाजिब है। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन की शहादत का वाकया पेश आया। मौलाना हसन रज़ा आला हजरत के भाई है। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही जनाब, 5 में से कितने नंबर हासिल किए? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब, या तो आप फैसलाबाद वाले 5 सही जवाब देकर टाई कर सकते हैं, या डडियाल वाले आज मुकाबला ले जाएंगे। ये कैसा मुकाबला है नाजरीन, कहां से चला था और कहां चला गया है। डडियाल सिक्योर सीट पर है। अब फैसलाबाद को 5 नंबर लेने अगर मुकाबले को टाई करना है, वरना डडियाल वाले मुकाबला ले जाएंगे। जनाब, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। जिन्नात को मिट्टी से पैदा किया गया है। गलत। शव्वालुल मुकर्रम 10वां महीना नहीं है। सही। इमाम हुसैन की वालदा का नाम हजरत फातिमा नहीं है। गलत। काबा शरीफ पर जो सोने का परनाना बना हुआ है उसे मिजाबे रहमत कहते हैं। सही। जनाब, 5 में से 4 सही जवाब दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डडियाल कश्मीर की टीम आगे बढ़ गई है। उस्कुरुल्लाह। हमारी सांसें इतनी बेरब्त हैं, इन बच्चों का क्या हाल होगा? आखिरी सेकंड तक पता नहीं चल रहा था कौन सी टीम आगे जाएगी। और जनाब, शुरू से फैसलाबाद आगे था, लेकिन आखिर में पासा पलटा और कश्मीर वाले आगे बढ़ गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। अब तक के ज़हनी आजमाइश के 8 मुकाबलों का सबसे बड़ा अपसेट था कि फैसलाबाद की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई, वरना नॉर्मली फैसलाबाद हमने देखा बहुत आगे तक जाते हैं
اور ڈڈیال نے پہلی بار اس طرح شرکت کی اور بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھے. لیکن آج دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھتی ہے. آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ پہلے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جیت یا ہار مقصد علم نور ہے، عشق کے بول، فتاوی اہل سنت بہترین دوست، جان ہے تو جہان ہے، فرق تلاش کریں نصیب اپنا اپنا. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور. جی دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے. پشاور والوں سے پہلے شروع کرتے ہیں. بتائیے حاملین عرش، ملائکہ برراہ اور ملائکہ صفراء وغیرہ کا قبلہ کیا ہے؟ حاملین عرش کا قبلہ عرش، حاملین سفارہ کا قبلہ وہ بیت کرسی، اور حاملین برہ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. دوبارہ غور کر لیجئے. حاملین عرش کا قبلہ عرش، حاملین سفارہ کا قبلہ جو ہے وہ کرسی ہے، اور حاملین برہ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم ہے، ملائکہ بررہ کا قبلہ کرسی اور ملائکہ سفرہ وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے. آپ نے تھوڑا سا الٹ کہہ دیا، ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے، یہ غلطی ہو گئی ہے. ناظرین ذرا کمال کا سوال ہے، سوال سنیے گا. جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش اعظم ہے، ملائکہ بررہ کا قبلہ کرسی ہے اور ملائکہ سفرہ وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے. یہ ملائکہ کی قسمیں ہیں، فرشتوں کی قسمیں ہیں. اب جناب چلیں گے ہم سیالکوٹ کی جانب. ہمت میں رہیے گا، کوئی بات نہیں، ابھی تو مقابلہ بہت باقی ہے. جی سیالکوٹ والوں سے سوال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی تو کس طرف رخ انور فرمایا؟ جیت یا ہار مقصد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تو بیت المقدس کی طرف رخ انور فرمایا، اس لیے کہ اس وقت تک کبھی قبلے کی رخ کی تبدیلی کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. کیونکہ اس وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز ادا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے پشاور والوں سے. سب سے پہلے کس انصاری صحابی نے اپنا مکان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا تھا، ہبہ کیا تھا؟ سب سے پہلے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے رہائش اختیار کی تھی. آج پشاور والوں کے ساتھ تھوڑا سا بیڈ لک چل رہا ہے، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. سب سے پہلے جن انصاری صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہبہ مکان نظر کیا، اس نصیب صحابی کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان کی زمین میں بنائے گئے. غلطی ہو گئی ہے جناب. چلیں گے پھر سیالکوٹ کی طرف. جب مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اس کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 54 گز تھی. جی 60 گز لمبی 54 گز چوڑی مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر ہوئی تھی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب یہ بتائیے عمامے کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ امامے کی کم سے کم مقدار 2.5 گز اور 2.5 گز ہے اور 6 گز سے زائد نہ ہو. جناب پہلے نمبر حاصل کر لیے ہیں پشاور والوں نے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، 6 گز سے زیادہ نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. زور سے کیا کہیں گے کراچی والے؟ چلے جناب سیالکوٹ والوں کی باری ہے. وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں کہ اگر کسی بندے میں ہو تو وہ ایمان کی لذت پالے گا؟ سبحان اللہ، ایمان کی لذت تو سب کو چاہیے. اب ذرا غور سے سن لیں وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں. پہلی خصلت یہ ہے کہ کسی شخص سے محبت اللہ رسول کے لیے کی جائے، اللہ رسول اس کو ہر شخص سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور کفر میں لوٹنا اسے ایسا ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا.
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसमें 3 खसलतें होंगी वो ईमान की लज्जत पा लेगा। नंबर 1, जो बंदे से सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत करे। नंबर 2, अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम उसे हर चीज से ज्यादा प्यारे हों। और नंबर 3, कुफ्र में लौट जाना जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे बचा लिया, ऐसा बुरा जाने जैसे आग में डाला जाना। जवाब इनका दुरुस्त है जनाब। अब बारी है फिर पेशावर वालों की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क की तरफ हिजरत फरमाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क इराक से मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई और इस हिजरत में आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। जी जनाब, इराक से सरजमीने शाम की तरफ हिजरत फरमाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, सियालकोट वालों की बारी है। कुरान में है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को सुतूनों के बगैर बनाया, इसका मतलब क्या है? एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने आसमानों को बगैर सुतूनों के ही बनाया है, जैसे तुम देखते हो कि तुम्हें नजर नहीं आते, या फिर ये है कि सुतून तो हैं लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। जी, ये तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में ये दोनों माना लिखे हैं। आसमानों को सुतूनों के बगैर बनाने का एक माना ये है कि कोई सुतून है ही नहीं और तुम्हारी नजर खुद इसका मुशाहिदा कर रही है कि कोई सुतून नजर नहीं आता। और दूसरा माना यह है कि आसमानों के सुतून तो हैं लेकिन वो ऐसे नहीं जिन्हें तुम देख सको, वो गोया ऐसे है जैसे सुतूनों के बगैर ही बना हुआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, फिर चलेंगे पेशावर वालों की तरफ। हजरत सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तलब शोहरत की क्या नहूसत बयान फरमाते हैं? जो शोहरत के तलबगार होते हैं, चाहते हैं किसी तरह फेम हासिल हो जाए, सोचिए तलब शोहरत की नहूसत क्या है। अब जवाब सुनिएगा। सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने किसी ऐसी शख्स को नहीं देखा जो शोहरत का तलबगार हो और उसकी दीन तबाह और वो खुद जलील ख्वार ना हो। अल्लाह फरमाते, मैंने ऐसा कोई शोहरत का चाहत रखने वाला तलबगार देखा नहीं कि उसके या तो दीन तबाह हो और वो खुद जलील और रुसवा ना हुआ हो। अल्लाह पाक तलब शोहरत की जो आफत है इससे हम सबको महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या प्यारा सवाल है, क्या बात है। आशिक अकबर के बारे में सवाल है कि जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर किस तरह का है? सुभान अल्लाह। रेशम के पर्दों से बना एक महल देखा तो एक फरिश्ते से इस्तफसार फरमाया, ये किसके लिए है? फरिश्ते ने अर्ज की, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए है। नबी पाक ने जन्नत में रेशम के पर्दों से आरास्ता एक महल देखा। जिब्रील अमीन से सवाल किया है, जिब्रील ये किसके लिए है? अर्ज की, हुजूर ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या बात है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। सुभान अल्लाह। जनाब 5-5 सवाल हो गए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलेंगे मगर वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करने का। देखें आप में से कौन जवाब देता है और जवाब देकर तोहफा हासिल करता है। जी सैयद साहब, शफीक भाई। जी, सवाल यह है कि इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत क्या है, उनका नाम क्या है और उनका मज़ार कहाँ पर है? जो सही जवाब देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे और इंशाअल्लाह मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ दिया जाएगा। तो हमने 3 सवाल कर लिए एक साथ 3 सवाल। तो तोहफा भी तो बड़ा है ना। 3 तोहफे दे रहे हैं ना। चलेंगे, ले एक तोहफा और दे दें। 2 है ना, एक तीसरा ये हो गया। अपना नाम भी बताएंगे। शहजाद अत्तारी। माशाल्लाह। इमाम आजम का अबू हनीफा, नाम उनका नोमान बिन साबित है। और मज़ार शरीफ हाँ बिल्कुल ठीक है, इराक में है। इराक का शहर भी बताएं। बगदाद शरीफ में इमाम आजम का मज़ार है। अल्लाह आपको मुझे हम सबको हाजिरी अता फरमाए। माशाल्लाह, तोहफा पेश कीजिए। माशाल्लाह। जबले नूर किस पहाड़ का दूसरा नाम है? जबले नूर गारे हिरा का नाम है। गारे हिरा तो एक गार है और जबल एक पहाड़ है, ठीक है ना। वैसे इसको जबले हिरा कहते हैं, यानी गारे हिरा की होने की वजह से इसको जबले हिरा भी कहा जाता है। ऐसा ही है शफीक भाई? चले मान लेते हैं इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनसे आप 3 दिन का काफिला भी ले लें, थोड़ी गलती भी हुई है ना। जल्दी से इंशाल्लाह एक नियत करें इंशाल्लाह। चलें तोहफा पेश कर दें। इनको गिलाफे खाना काबा के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमुआ पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
ये तो थी इब्तिदा। जनाब 6 नंबर हैं पेशावर के, 10 नंबर हैं सियालकोट के। पहले सेगमेंट में कुछ फर्क है लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। My dear uncle Haji Abdul Habib Attari, your program Zehni Azmaish is a sort of knowledge. Today I am tell you about what we learned of this program. First of all, I learned from this program Ishq Raza, and second weeping in Yad Madina, and then love from Makkah Madina. May Allah bless you. Ameen. आमीन। जज़ाकल्लाह for your call and your appreciations. Let's move towards another call. अगली कॉल दीजिएगा। मैं हानि अतारिया पापतन से अस्करी हूँ। अब्दुल हबीबुल का मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। इस अमेजिंग अनबिलीवेबल। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आइए शुरू करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार सुनने हैं। अब बारी है पेशावर वालों की। रंज आदा का रजा चारा ही क्या है जब उन्हें आप गुस्ताख रखे हिल्म शकीबा ये दो। आप गुस्ताख रखे हिल्मो शकीबाई ये दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंतफीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ऐशे जावेद मुबारक तुझे शैदाई। ऐशे जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज अब। दम लबों पर आ गया है या गौसे आज़म दस्तगीर। नहीं जनाब, गलती हो गई है। दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज अब। ए जाने मसीहा इसे तुम आके बचा लो। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है सियालकोट वालों की। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आओ। या शाह मदीना मेरी इमदाद को आओ। आफात व बलियात के पंजों से निकालो। आफात व बलियात के पंजों से निकालो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुखालिफ नबी का गिरफ्तार होगा। आप इसका पहला मिसरा पढ़ेंगे। मुखालिफ नबी का गिरफ्तार होगा। इबादुन नबी जाए जन्नत में सीधे मुखालिफ नबी का गिरफ्तार हो। इबादुन नबी जाए जन्नत में सीधे मुखालिफ नबी का गिरफ्तार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, आपसे भी दूसरा मिसरा सुना जाएगा। आपने पहला पढ़ना है। मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा। यहाँ उनका दामन पकड़ लो वगरना मदद चाहना वहाँ पे बेकार हो। यहाँ इनका दामन पकड़ लो वगरना मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हश्र में जामे कौसर की है घर तलब। हश्र में जामे कौसर की है गर तलब। ओ साकिए कौसर मदीने में है। आओ साकिए कौसर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आओ आओ गुनाहगारों आ जाओ तुम। आओ आओ गुनाहगारो आ जाओ तुम। शाफिए रोज़े महशर मदीने। वाह वाह वाह। शाफिए रोज़े महशर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, फिर बारी पेशावर वालों की है। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीज़ा वो हौज़े कौसर यही वो आली मकाम हो। सिरातो मीज़ान व हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम वाह वाह वाह। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह जनाब। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कुछ अशार सुनते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम इन अशार के दरमियान अमीर अहले सुन्नत का हमने सुना। बड़ा प्यारा वो कलाम है मदीना पाक के फजाइल के ऊपर। उसमें एक शेर बहुत प्यारा है। सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए
कौन ये शेर सुनाएगा? सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए, चलें जनाब। सारे दीवाने बेताब है इसलिए शाह की कब्र अनवर मदीने में है। हाँ, शाह की कब्र अनवर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। इनको चादर मुबारक मज़ार आला हज़रत। चलें नीचे वाले इस्लाम भाई से भी एक सवाल इसी कलाम का। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा। ये एक स्लैम भी जी, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी आज घर घर मदीने में है। रोशनी आज घर घर मदीने में है। माशाअल्लाह, जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमुआ पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह एक कॉल और शामिल करते हैं। जनाब 14 नंबर है पेशावर, 20 नंबर सियालकोट, फर्क कुछ और बड़ा है। आइए एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माई बहुत अच्छा लगता है। इसका ये वाला सेगमेंट बेहतरीन दोस्त, इससे तो हमें किताबों का तारुफ सीखने को मिलता है। जी, इसीलिए तो हम ये सेगमेंट लाए हैं कि शौक मुताला भी बढ़े, किताबों का तारुफ भी हो। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं अगला सेगमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त मालूमाती सेगमेंट है जिसका नाम है फतावा अहले सुन्नत। जी, जी पेशावर वालों से सवाल करेंगे। एक शख्स दुकानदार को कोई चीज बेचने आया। दुकानदार ने कहा मैं ये अपनी दुकान पर रख लेता हूँ, जितने की बिकेगी उसमें से 20,000 आपको दे दूंगा और ऊपर जो होंगे मैं रख लूंगा। बताइए क्या ये दुरुस्त है? फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है? दुकानदारों के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब। इसी सूरत में दुकानदार और मालिक के दरमियान कोई बयान नहीं हुई, मगर मालिक ने दुकानदार को इसका वकील बना दिया। दुकानदार को इसका वकील बना दिया। मालिक ने दुकानदार को इसका वकील बना दिया। जब दुकानदार उसी चीज को बेचते जितनी उजरत हो तो वो लेगा, और ये नामालूम है, लिहाजा ये सूरत जायज नहीं है। जनाब ये तरीका शरन जायज नहीं है, क्योंकि इस सूरत में मालिक और दुकानदार के दरमियान खरीदो फरोख्त नहीं हुई है। मालिक ने दुकानदार को चीज बेचने का वकील बनाया है। अब दुकानदार चीज बेचकर उसकी उजरत लेगा जो कि नामालूम है, पता ही नहीं कितने का बिकेगा। लिहाजा ये तरीका शरअन जायज नहीं है। पेशावर वालों का जवाब बिल्कुल ठीक है। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलेंगे सियालकोट वालों की तरफ। अगर किसी ने वलीउल्लाह के मजार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी तो क्या इसे पूरा करना वाजिब है? बताइए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है? मजारात पर चादर चढ़ाने की लोग नियत कर लेते हैं, मन्नत मानते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। अगर किसी ने वलीउल्लाह के मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी तो ये कोई वाजिब नहीं है, ये मन्नत नहीं होगी। अलबत्ता वलियों के मज़ार पर बरकत के लिए चादर चढ़ाना ये मुस्तहब एक अमल है। जी ये अच्छा तरीका है, मुस्तहसन है, बेहतर है, लेकिन ये शरई मन्नत नहीं है। यानी ये वाजिब शरई नहीं होता, इसका पूरा करना वाजिब नहीं। अलबत्ता बुजुर्गाने दीन की मज़ार पर चादर चढ़ाना ये अच्छा अमल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फिर चलेंगे पेशावर वालों की तरफ। एक शख्स ने 11,000 रुपए मेहर के एवज निकाह किया और मेहर अदा नहीं किया। काफी अरसे के बाद जब वो मेहर अदा करना चाहता है तो जोजा कह रही है कि अब तो रुपए की कदर बड़ी कम हो गई है, अब मैं 1.5 लाख रुपए लूंगी। तो अब बताइए मर्द पर कितना मेहर देना जो है वो लाजिम है? फतावा अहले सुन्नत में इसका जवाब क्या लिखा है? जितना मेहर मुकर्रर शुदा है वही देना होगा। करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से इस पर असर नहीं पड़ता। जैसे कि मुफ्ती अमजद आज़मी फरमाते हैं कि 10 दिरहम कम से कम मेहर की मकदार है। अगर कोई चीज़ किसी औरत को मेहर में देने का ठहरा और उस वक्त वो चीज़ 10 दिरहम की थी, अब उसकी कीमत कम हो गई तो वही चीज़ उसको दी जाएगी, वो उससे ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकता। जनाब ज्यादा का मुतालबा नहीं हो सकता, जो तय हुआ था वही देंगे, ज्यादा देना लाजमी नहीं है। शादी के वक्त ही मेहर दिया करो भाई, बाद में मसले भी नहीं होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब सियालकोट वालों की बारी है। अगर किसी शख्स ने जो साहिब इस्तिताअत नहीं था, वालिदैन के साथ मुतलक हज की नीयत से हज कर लिया, फिर वो साहिब इस्तिताअत हो गया, फिर मालदार हो गया, तो क्या इस पर दोबारा हज करना फर्ज होगा या वो हज काफी है? फतावा अहले सुन्नत में बताइए इसका जवाब क्या है? अगर किसी ने मुतलक हज की नीयत से हज कर लिया
तो उसका वो फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद उस पर दोबारा हज करना फ़र्ज़ नहीं है। एक वजाहत की ज़रूरत है कि सवाल ये हुआ था कि अगर किसी शख्स ने साहिब इस्तिताअत नहीं था और वालिदैन के साथ मुतलक हज की नीयत से उसने हज कर लिया, फिर वो साहिब इस्तिताअत हो गया, तो क्या उस पर दोबारा हज करना फ़र्ज़ है? तो बताया ये गया कि अगर वालिदैन के साथ भी हज कर लिया और बाद में साहिब इस्तिताअत हुआ तो उस पर हज ज़रूरी नहीं है, मगर इसमें शर्त यह है कि वो बालिग भी हो। अगर नाबालिगी में हज कर लिया है तो फिर बालिग होने के बाद तो हज करना पड़ेगा ना। बालिग था और इस्तिताअत नहीं थी, माल नहीं था, मगर वालिदैन के साथ हज कर लिया, अब मालदार हो गया तो अब उसको दोबारा हज करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी वजाहत थी, वजाहत नोट कर लीजिएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, ये भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इस सेगमेंट में किसी ने कोई गलती नहीं की है। आइए फिर स्कोरबोर्ड देखते हैं और उसके बाद मुकाबले को मजीद आगे लेके चलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया हार कहती है के। अच्छा, 18 नंबर पेशावर वालों के, 24 नंबर हैं सियालकोट वालों के। अगला सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत, ज्यादा नंबर लेने वाला सेगमेंट है, मगर एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। हमारे प्यारे प्यारे रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई साहब का प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश जारी है। बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा है ये, जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक सोते नहीं और इंतजार रहता है इसका। माशाअल्लाह एक से एक बेहतरीन सेगमेंट है। मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो है फतावा अहले सुन्नत। तो आपसे अर्ज है इसको जारी रखना आखिरी प्रोग्राम तक, और जो फर्क पहचाने इसकी जगह कुछ बजर सेगमेंट कर दें। जो पहले घंटी बजती थी इससे बहुत जोश खरोश पैदा होता था। जी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम नॉर्मली जो बजर राउंड होता है हम दूसरे राउंड में लाते हैं, प्री क्वार्टर से शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा ये फर्क तलाश करे सेगमेंट है, इसमें भी कुछ खूबसूरती होगी। आगे जाके इंशाल्लाह मजीद कुछ सेगमेंट्स भी इसी वीक में हम कुछ तब्दील करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो उसे भी आप पसंद करेंगे। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है बेहतरीन दोस्त। बेहतरीन दोस्त जो सेगमेंट है इसमें किताबों का तारुफ होता है। 5 नंबर दोनों टीमें हासिल कर सकती हैं अगर पहले इशारे पर ही पहुंच जाएं। तो आइए शुरू करते हैं पेशावर वालों से। 5 नंबर दिखाए जाएंगे, बताइए कौन सा नंबर आप चूज करेंगे। जी 4 नंबर को। 4 नंबर के पीछे क्या है बताया जाए। मुसन्निफ का नाम है हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला की ये किताब है। अब आप चाहें तो एक और ऑप्शन भी ले लीजिए। 2 नंबर। 2 नंबर खोला जाए जनाब। मौजू आला हजरत की किताब का मौजू फिक है। हर ऑप्शन पर 1 नंबर कम हो रहा है। आप जवाब देते तो 4 नंबर मिलेंगे, एक और ऑप्शन लेंगे तो 3 नंबर हो जाएंगे। जी एक नंबर। जिल्दें कितनी हैं जनाब। 1 जिल्द है। आला हजरत की किताब है, 1 जिल्द पर मुश्तमिल है, फिक के मौजू पर किताब है। मजीद ऑप्शन लेंगे या जवाब देंगे। 3 नहीं जनाब, रिस्क नहीं ले रहे। 3 नंबर ऑप्शन खोलेंगे। बताइए सफहात कितने हैं। 142 सफहात हैं। अब सही जवाब दे देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। वालिदैन ज़ौजैन और असातिज़ा के हुकूक। वालिदैन ज़ौजैन और असातिज़ा के हुकूक, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बड़ी प्यारी किताब है और ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। वालिदैन ज़ौजैन असातिज़ा, जिंदगी इन सब के साथ गुजर रही होती है तो पता होना चाहिए कि इनके हुकूक क्या है, बंदा उसको सही तरीके से बजा लाए। मकतबतुल मदीना से भी आप हासिल कर सकते हैं, दावतिस्लामी.net से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सियालकोट वालों की तरफ चलेंगे। सियालकोट वाले हमें बताएंगे कौन सा नंबर ही पसंद करेंगे। जी नंबर 1। नंबर 1 जबान कौन सी है। उर्दू जबान की किताब है जनाब। आंखें बंद करके जवाब दे दो, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन गलती की तो कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 4। नंबर 4 नहीं जनाब, नहीं मानी मेरी बात, कोई बात। 4 नंबर। जिल्दें कितनी हैं। उर्दू जबान की 30 जिल्दों वाली किताब है। अब तो शायद बहुत करीब पहुंच गए। सही जवाब 4 नंबर दिला सकता है। रिस्क ना लीजिएगा अगर कंफर्मेशन ना हो। चाहे तो ऑप्शन ले लें।
لیکن اب 7 سیکنڈ بعد آپشن نہیں لیں گے تو ایک آپشن خود ہی خود کھل جائے گا. فتاوی رضویہ. ان کا کہنا ہے فتاوی رضویہ. بعض اوقات جلدی میں نقصان بھی ہو جاتا ہے جناب. آئیے آپشنز کھول کے دیکھتے ہیں. اگر 3 نمبر آپشن یہ کھولتے تو کیا ہوتا اس کے پیچھے. جی مصنف کون ہیں؟ جی جناب اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے 30 جلدوں پر. جواب ان کا بالکل درست. فتاوی رضویہ جواب درست دے دیا ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے جناب. فتاوی رضویہ یہ یوں سمجھیے کہ ایک علم دین کا سمندر ہے اور علماء کرام بھی فیضیاب ہوتے ہیں. ہر گھر کی زینت ہونا چاہیے. ضرور خریدیں. اگر خرید نہیں سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, پڑھیں, کوشش کریں. علماء کرام کی اس پہ شاگردی اختیار کر کے پڑھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جناب پھر چلیں گے ہم پشاور والوں کی طرف. 5 آپشنز ہیں, بتائیے کون سا آپشن پسند کریں گے. 2 نمبر. 2 نمبر. موضوع حدیث کے موضوع پر یہ کتاب ہے جناب. 4 نمبر. 4 نمبر. زبان جناب حدیث کے موضوع پر کتاب ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان کی کتاب ہے. اچھا جناب چاہیں تو ایک اور آپشن لے لیں. 5 نمبر. 5 نمبر. مصنف کون ہے جناب؟ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمت اللہ تعالی علیہ. سنن دارمی. سنن دارمی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 659 صفحوں پر مشتمل کتاب سنن دارمی. اس کے صحیح جواب کی صورت میں ان کو کتنے 3 نمبر دیے گئے. اچھا جناب اب سیالکوٹ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر پر بھی بڑا زبردست مشورہ ہو رہا ہے. جی 3 نمبر. 3 نمبر. جناب صفحات 2601 صفحات ہیں. صحیح جواب انہیں 5 نمبر دلا سکتا ہے. سنن نسائی. سنن نسائی جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ نصیب ہوتے ہیں صفحات کا باکس کھل گیا اور صفحات یاد تھے کہ کس کتاب کے کتنے صفحات ہیں. احمد بن شعیب النسائی رحمت اللہ تعالی کی لکھی ہوئی کتاب حدیث کے موضوع پر 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور علم دین کا خزانہ ہے. میرے آقا کے پیارے پیارے فرامین ہیں اور جناب یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ماشاءاللہ. جناب 5 نمبر حاصل کر کے بہت آگے بڑھتے ہوئے سیالکوٹ کے اسلامی بھائی. آئیے جناب پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر مزید آگے چلیں گے. جناب 23 نمبر پشاور, 33 نمبر سیالکوٹ. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جان ہے تو جہان ہے. العلم نور, العلم نور. یہ بڑے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں ٹریفک کے قوانین کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے اور ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یقیناً جان ہے تو جہان ہے. اپنی جان کا خیال رکھیں اور پلیز ان قوانین کا بھی خیال رکھیں. پشاور والوں کی باری ہے اور آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کون سا اشارہ ہے جو انہوں نے بتانا ہے. جی کون سے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے؟ ابتدائی طبی مرکز. ابتدائی طبی امداد کا مرکز. یہ فرسٹ ایڈ کے مرکز کی علامت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قریب ہی کوئی ایسا ہاسپٹل ہے یا فرسٹ ایڈ آپ کو مل سکتا ہے اور وہاں آپ طبی امداد لے سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے سیالکوٹ والوں کی اور ان کو اشارہ دکھایا جائے. 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار والا علاقہ شروع ہو گیا ہے. جی آپ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں. نارملی یہ علامت جو ہے سکولز وغیرہ کے پاس لگی ہوتی ہے. یہاں ٹرننگ بڑی شارپ ٹرننگ, بڑی فاسٹ ٹرننگ ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پر خاص احتیاط کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک ویڈیو بھی موجود ہے تاکہ مزید احساس ہو کہ اس جگہوں پر ہمیں ایسی جگہوں پر اپنی سپیڈ کو کم کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں یہ اتنی جو ہے وہ
टर्निंग थी और ज्यादा स्पीड की वजह से इस गाड़ी में हादसा हुआ। तो जहां हमें हमारी ही बेहतरी के लिए लिखा होता है कि यहाँ स्पीड कम रखें क्योंकि बड़े शार्प टर्न्स होते हैं, तो अल्लाह करे कि हम इस बात का ख्याल रखें। हमारे पेशावर वाले भाई तो ज्यादा ख्याल रखें, आपके लोग जो है वो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, तो जान है तो जहान है, कुछ मिनट बाद में पहुंच जाएंगे, ऐसा ना हो कि कभी ना पहुंचे, उससे तो ये बेहतर है। जनाब इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है, फिर बारी पेशावर वालों की है, इशारा दिखाइए जनाब। ये तो थी इब्तिदा, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। आगे चलते जाएं, रास्ता साफ रखिए। सड़क खाली रखें, रुकना नहीं है, मत रुकें, सड़क खाली रखें। नॉर्मली ये ऐसी जगहों पर लगा होता है कि जहां रोड पे रुकना नहीं होता, सवारी भी नहीं उतार सकते। बदकिस्मती से ऐसी जगहों पर रिक्शा टैक्सी वाले जो है वो पैसेंजर तो उतार रहे होते हैं, हालांकि उस सड़क को कंटिन्यू चलते रहना देना होता है, रुकना नहीं होता। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है और हमने इसके लिए वीडियो भी आपके लिए निकाली है ताकि मजीद अंदाजा हो जाए कि जहां पर ये साइन हो हमें फौरन आगे जाना होता है। जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सिर्फ इनको बचाने के लिए इस ट्रक वाले ने गाड़ी अपनी बचाई, लेकिन उसके बाद उसका भी बेचारे का हाल क्या हुआ होगा। नॉर्मली गाड़ियां इस तरह टकराती भी हैं, तो जहां रुकना नहीं है वहां नहीं रुकना है। अगर आपसे थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई है, रास्ता भूल गए हैं, तो आगे से यू टर्न करके आ जाएं। आप रुकेंगे तो पीछे गाड़ियां आपको हिट कर देंगी, और जान है तो जहान है। अब बारी है जनाब सियालकोट वालों की। जी पुलिस चौकी रुकिए। जनाब यहाँ ये पुलिस चेक पोस्ट होती है, पुलिस चौकी होती है, और इसका मतलब यहाँ रुकना होता है, तो यहाँ रुक जाना चाहिए। और वैसे भी जब कानून नाफिज करने वाले इदारे कभी रोके तो रुकना चाहिए। कुछ लोग उसको स्पीड से निकलने की कोशिश करते हैं और उससे आपकी जात पर शक होने लगता है कि आप कोई वारदात करके जा रहे हैं, और बाज़ औक़ात हमारे हमने देखा कि उसकी वजह से भी फिर हादसात होते हैं। तो बिल्कुल रुक जाना चाहिए, और रुक कर अगर कोई बात होनी है तो वो बात भी हो जाए। चेक पोस्ट है तो चेकिंग करवानी चाहिए। अगर चेकिंग हो भी रही है तो वो हमारे लिए हो रही है, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा शख्स है जो नहीं होना चाहिए सड़क पर, तो उसके लिए अगर चेकिंग हो रही है तो होने दीजिए और उसमें ताउन करना चाहिए। जनाब दोनों टीमों ने इसके भी जवाब दे दिए और दुरुस्त जवाब दिए। आप उम्मीद करता हूं कि इन इशारों को याद रखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुज़िश्ता दिनों जो क्विज एप्लीकेशन पर हम अनाउंस वगैरह करते हैं, कुरानदाजी करते हैं, बाबुल मदीना कराची के ही है मोहम्मद इरफान भाई, इनकी आईडी है 107525। ये अपना तोहफा लेने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं। इंशाल्लाह शफीक भाई ने तोहफा पेश करेंगे। जी इरफान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से एक और गुजारिश करता चलूंगा कि क्विज एप्लीकेशन के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर सिर्फ क्विज एप्लीकेशन ही के जवाब दें। जो आप नाज़रीन से सवाल करते हैं इसके जवाब भी उस पर आ रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है कि उनका इनाम निकला नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आईडी के स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिए। रोजाना तकरीबन 800-900 SMS आ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमने रोज आपको भेजना है अपना आईडी, और आप फिर हमारी उसी आईडी से कुरानदाजी करेंगे। तो आपकी आईडी हमें भेजने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिकली हम तक आ गई है। जितने लोगों ने जवाब दिए सही, उन सब की आईडीज कंप्यूटर खुद कलेक्ट करता है, और उन हजारों आईडीज में से वो हमें 5 नाम निकाल के दे देता है, 5 आईडीज। फिर हम आपको बताते हैं कि ये आपकी 5 आईडीज हैं। अब अगर आपकी आईडी निकली है तो हमें भेजिए, तो उन 5 लोगों को हम तोहफा देंगे। देना 5 को तोहफा है, 800 लोग मैसेज करेंगे तो फिर सैयद साहब का मोबाइल नाराज ना हो जाए, तो तुसी एंज ना करो। अच्छा जनाब, अब एक कॉल ले लेते हैं और फिर हम इंशाल्लाह मजीद नातखानी भी करेंगे और इंशाल्लाह नेक आमाल का जायजा भी होगा। मेरा नाम मुबीन इब्रार है, मैं गुजरान से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। आज मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आपके सिलसिले में एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसमें हमको इस्लाम से वाबस्ता वाक़या सुनाए जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मशवरा आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए नाजरीन, अब नेक आमाल का जायजा करेंगे। अपने अपने रसाइल निकाल लें, रसाइल नहीं तो इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बहुत खूबसूरत नेक आमाल हमें मदनी मरकज ने अता किए हैं, और अल्लाह करे हम रोज जायजा करें, हमें पता चले कि हम कितने ऐसे अमाल हैं जो नहीं कर पाते, तो फिर करना शुरू कर दें। जी नेक अमल नंबर 1, अच्छी नियतें की। नंबर 2, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, और कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया,
اور کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مچھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو پالا دل لڑ لگیا میرے تو پرے رہتے، میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو پرے رہتے، میری آسا کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، کیونکہ میں لج پالا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاس
प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा मैं लज पाना मांगता मेरे बल्ले भरे रहने और ख़याले यार बिच में मस्त रहना दिने राती ख़याले यार बिच में मस्त रहना दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहने मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहने और दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे जिन्ना दे पीर रुस जावे ओ जो देवी मरे रहने जिन्ना दे पीर रुस जावे ओ जो देवी मरे रहने आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए जनाब एक और सिलसिले में और शामिल करते हैं जी। हसन रजा अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा है। हमें इस सिलसिले की बरकत से बहुत प्यारी प्यारी मालूमात हासिल होती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई को शाद आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई से नाकिस मशवरा अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश के शुरू में जो तिलावत कुरान पाक होती है, अगर तिलावत में सूरह मुल्क की तिलावत हो जाया करे तो मदीना मदीना, इससे जो रात को सूरह मुल्क पढ़ने की फजीलत है वो भी हासिल हो जाएगी। क्या फरमाते हैं आप इस हवाले से? जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन ज़ाहिर है कि रोज़ सूरह मुल्क की तिलावत होनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए और इसकी फजीलत भी हासिल करनी चाहिए। और मदनी चैनल पर रोज़ाना सूरह मुल्क जो है वो सुनाई जाती है, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। असल में कारी साहब की किस किस सूरत पर तैयारी होती है और वो ज़ाहिर है कि अपने हिसाब से तैयारी करके आते हैं, लेकिन मशवरा फिर भी अच्छा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए बहुत खूबसूरत सेगमेंट है, हमारे सोबान भाई पेश करते हैं। और याद रहे, एक खुशखबरी भी दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह कल के सिलसिले में जो आप बराह रास्त देखेंगे, सोबान भाई भी मंच पर होंगे, वो कराची आए हुए इंशाअल्लाह, तो उनको हमने इन्वाइट किया है। तो कल और परसों के सिलसिले में इंशाअल्लाह सोबान भाई भी मंच पर होंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं और सोबान भाई का सेगमेंट सुनते हैं, अच्छे शहरी। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 12 और सेगमेंट है अच्छे शहरी। आप घर से बाहर निकले, गली में पानी खड़ा है, गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है, बू भी आ रही है और दीगर मसाइल हैं। ये खड़ा पानी, ये जरासीमों का घर है और मच्छरों के लिए अफजाइश नस्ल की एक्सीलेंट ब्रीडिंग ग्राउंड भी। अच्छा शहरी बनिए। ये खराब गटर, लीक करते हुए पाइप, नलके, घर से बाहर गाड़ी मोटरसाइकिल धोना, टैंकी लीक कर रही है या टैंकी भर चुकी है और उसकी परवाह नहीं की जा रही, इन तमाम मामलात का खास ख्याल रखें। एक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक अगर घर में ये लीकेज का प्रोसेस जारी है तो सालाना 10,000 गैलन पानी जाया हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया में हर 3 में से 1 इंसान को पीने वाला साफ पानी मुयस्सर नहीं। तो पानी के ज़िया से बचें। ब्रश करते वक्त नलका खुला ना रखें, नलका बंद कर दें। टॉयलेट यूज करते हुए फ्लश में एहतियात कीजिए। गाड़ी धोते हुए बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा देर तक ना नहाएं। लॉन्ग शावर्स नो। किचन टॉयलेट में अगर पानी लीक हो रहा है फौरन मुरम्मत करवा लीजिए। याद रहे, पानी की कमी बहुत से इंसानों को मुतासिर कर रही है, बल्कि साथ साथ
جانوروں کی بہت سی نسلیں بھی پانی کی کمی کی وجہ سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، چاہے تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ تو ہمیں چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھیں اور بلا وجہ پانی نہ بہائیں۔ اچھے شہری سیگمنٹ بھی ہم نے سنا، اور اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا کئی عاشقان رسول کو انتظار ہوتا ہے، امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ العلم نور، العلم نور۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پشاور کی ٹیم ہے، اور پختون اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے آج ہمارے سیگمنٹ میں ہم پشتو زبان میں انشاءاللہ بدری پھول سنیں گے۔ کوشش کروں گا کہ پشتو زبان میں انشاءاللہ، اور پشتو زبان میں بھی نبی پاک کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ سبحان اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ خگو خگو اسلامی اروڑوں او مدنی چینل کا تن کو نن سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ کے بعد زمون خوگ اخیری نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہگا امتیان چے دا دنیا پا ہریو گٹ او پا ہر ملک کے اسیگی او پختو زباوائی یا پرے پوہیگی دہ گوئی زڑا ساتلو دپارا پہ پختو جبا کے دا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حسن او جمال پہ بارے کے بیان کولوں کوشش کوم کہ دے پہ دوران کے ماں نسے غلطی اوشی نو معافی غوارم دا اللہ تعالیٰ خوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ٹولو نہ اول حضرت بی بی آمنے رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً اوہ ورزے پہ ور کڑے وے بیایو سو ورزے حضرت صوبیے رضی اللہ تعالی عنہا ہغے نپس بیا حضرت بی بی حلیم رضی اللہ تعالی عنہا تر دو کالو عمر اورے پے ور کڑے وے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا زمونگ خوگ اخیری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دما شوم توب پبارے کے فرمائی چھے دا اللہ پاک خوگ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خائستہ خائستہ نورانی مخ مبارک بے پشپا کے داسے زلے دو چے رڑاں کولو دا پارا با دا ڈیوے ضرورت ناوو یوا ورز زمونگا گاونڈے ام خولا سعدیہ ماتا اویل چے اے حلیمے آیا تاسو پخپل کور کے دش پہ اور لگوے چے چولاشپا تتاسو کورنا خائستہ خائستہ رڑا گانے راخیجی بی بی حلیمہ فرمائی ما ورتا اویل چے دادا اور رڑا نہ دا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانی مخ رڑا دا اللہ تعالیٰ خپل غوگ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نور نہ پیدا کڑے دے زمون خوگ اخیری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک انسان دے خو نورانی انسان دے اور دو ٹولو انسانا نو سردار دے اللہ پاک دے مونگ ریختونی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوڑ کڑی آمین بجاہ النبی الامین۔ اب آئیے ہمارا مدنی مقصد بھی دہرا لیتے ہیں۔ ماتا دخپل زان او د ٹولے دنیا د خلقو اصلاح کولوں کوشش کول دی انشاءاللہ عز وجل نبا غیبت کون نبا یہ اوروں انشاءاللہ عز وجل۔ میں نمبر آپ کو دیتا ہوں، اب آپ بھی 10 میں سے کچھ نمبر دے دیجئے گا انشاءاللہ، غلطیاں معاف کر دیجئے گا۔ بڑی پیاری نعت ہے جناب پشتو زبان میں، اور بہت مشہور نعت ہے پشتو زبان میں، کچھ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، نہیں آئے گی تو الفاظ ایسے ہیں کہ آپ بھی مل کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ نورانی شمرو خاندہ حجاز یہ کنے، نورانی شمرو خاندہ حجاز یہ کنے، راتا ویا محمد نبی مختار یہ کنے، بلکہ یہ نورانی شمرو خاندہ حجاز یہ کنے، نورانی شمرو خاندہ حجاز یہ کنے، راتا ویا محمد نبی ممتاز یہ کنے، بلکہ یہ قد سلو سنوبے غنم رنگ گلے بشار
قد ستر بسنو پر غنم رنگ خکل بشر مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی محبوبہ مرحبا نبیانو پٹولی کے سرفراز یہ کنیے نبیانو پٹولی کے سرفراز یہ کنیے راتا محمد نبی ممتاز یہ کنیے بلکہ یہ نورانی شمر و خانت حجاز یہ کنیے نورانی شمر و خانت حجاز یہ کنیے راتا ویا محمد نبی ممتاز یہ کنیے بلکہ یہ دا صدیق عمر عثمان دا علی مرد میدان دا صدیق عمر عثمان دا علی مرد میدان مصطفیٰ مجتبی محبوبہ مرحبا مصطفیٰ مجتبی محبوبہ مرحبا دے ٹولو معشوقوں پا امتیاز یہ کنیے دے ٹولو معشوقوں پہ امتیاز یہ کنیے راتا ویا محمد نبی ممتاز یہ کنیے بلکہ یہ نورانی شمر و خانت حجاز یہ کنیے نورانی شمر و خانت حجاز یہ کنیے راتا ویا محمد نبی ممتاز یہ کنیے بلکہ یہ مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا محبوبہ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا 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 ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی پشاور کی، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہوا عبدالحبیب بھائی نے پشتو زبان میں جو بیان بھی کیا، نعت بھی پڑھی؟ الحمدللہ ہم تو پہلے بھی جب ذہنی آزمائش کے سیزن ہم دیکھتے رہے الحمدللہ، اس پہ بھی حاجی صاحب نے پشتو میں جو بیان کیا تھا وہ الحمدللہ بہت شوق سے دیکھا بھی تھا، بلکہ پشاور میں تو وائرل بھی ہوا تھا الحمدللہ، کئی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تھا الحمدللہ۔ داڑھی کی سنتیں اس وقت حاجی صاحب نے بیان فرمائی تھیں، اور آج بھی الحمدللہ بہت اچھا بیان بھی کیا، اور ماشاءاللہ کلام میں بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ حضرت کل کے سیگمنٹ میں کون سی زبان بولی جائے گی یہ بھی بتا دیں، تاکہ ہمارے دیگر ناظرین میں جو زبان سمجھنے والے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں بیٹھ کے سنیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہمارے ذہنی آزمائش میں کشمیری زبان میں بدری پھول پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، تو کشمیر کے رہنے والے عاشقان رسول انشاءاللہ ضرور شامل ہوں، بلکہ دوسروں کو دعوت بھی دیں اور انشاءاللہ اس کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور مقابلے کے جو آخری دو سیگمنٹ ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی جناب 27 نمبر پشاور، 37 نمبر ہیں سیالکوٹ کے۔ اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فرق تلاش کیجئے۔ العلم نور العلم نور۔ ہمارے بہت سارے کالرز ہمیں کہتے رہے کہ جناب زیارات مقامات مقدسہ یا رازوں کی سرزمین کو شامل کیجئے، تو ہم نے الحمدللہ ان کی بات مان لی ہے۔ آج جو فرق تلاش کریں سیگمنٹ ہے، اس میں دو تصویریں جو ہوں گی وہ کسی بہت ہی پیارے مزار شریف کی ہوں گی، جس میں یہ فرق تلاش کریں گے۔ دونوں ٹیمیں اپنا اپنا اسلام میں بھیجیں گے، بورڈ ٹھیک کیے جائیں، مارکر دے دیے جائیں، اور جب یہ اس فرق کو تلاش کر لیں گے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوگا تو جس مزار کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو کی صورت میں وہاں کی زیارت بھی کرائیں گے، کچھ ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین اسکرین پر بھی آپ وہ پکچر دیکھ لیں اور یہاں موجود اسلام میں بھی پکچر دیکھ لیں۔ 90 سیکنڈز ہیں، 5 فرق تلاش کرنے۔ مصر میں موجود غالباً یہ کوئی بازار ہے، کن کا مزار ہے، فرق کیا ہے؟ 90 سیکنڈز ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب آپ فرق تلاش کریں، ہم 1-2 کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ 5 فرق ہیں، آپ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا، 90 سیکنڈز ہے، تلاش کیجئے۔ جی کال دیجئے گا۔
रिजवान अत्तारी दिल्ली से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई के प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश से मैंने ये सीखा कि माशाल्लाह काफ़ी इल्म दीन हासिल हो रहा है और मैंने नियत की है अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह 11 सीज़न पहले आ चुके हैं और ये इंशाल्लाह 11 सीज़न में सारे के सारे इंशाल्लाह यूट्यूब से निकाल के इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल में पूरे देखूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक भी अता फरमाए, दुआ फरमा दीजिए। आपकी आसानी के लिए अर्ज कर देता हूँ, अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद है और मोबाइल पे प्ले स्टोर पे भी मौजूद है, ऐप स्टोर पे भी। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो सारे सिलसिले उसमें मौजूद भी हैं, तो आप वहाँ एक तरफ जाके जा सकते हैं। और ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में तो माशाल्लाह सवाल जवाब के जरिए भी आप देख सकते हैं। अलग से ज़हनी आजमाइश की भी नाम से एक है जिसपे सिर्फ ज़हनी आजमाइश के सिलसिले भी मौजूद हैं। एक और कॉल दीजिएगा, अपने एक बार गौर से देख लें 5 फर्क और अपने बोर्ड पर ही नजर रखें। हो सकता है कि हमारे शायद पेशावर वाले जल्दी फारिग हुए। एक और कॉल दे दें। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की खिदमत के अंदर आज अर्ज है हजूर, जिस तरह आपने ट्रैफिक के हवाले से आप ज़हनी आज़माइश के अंदर एक सेगमेंट रखा, तो हमने भी नियत की है, मैंने और मेरे भाई ने, कि आज के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वन वे क्रॉसिंग नहीं करेंगे। जो हम वन वे रोड क्रॉस करते थे इससे वाकई नुकसान हो सकता है, तो हम नियत करते हैं कि आज के बाद ये आउट ऑफ रेंज काम हम नहीं करेंगे। और आपका जो ज़हनी आज़माइश सिलसिला है इसके अंदर अगर एक सेगमेंट ये रख दिया जाए कि ये आवाज की है कि मदनी चैनल के मुबल्लिगीन नात खान और मुफ्तियान कराम की आवाज सुनाई जाए ज़हनी आज़माइश की टीम को और उनसे सवाल किया जाए कि ये आवाज किसकी है, तो इससे बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो सकती है। चले जनाब, बड़ा अच्छा मशवरा है। देखिए हमारी टीम उसको, हमारी मजलिस क्या करती है। 5 फर्क कौन से थे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जी। ये 5 फर्क थे। अब हम देखते हैं कि ये 5 फर्क इन्होंने पहचाने हैं कि नहीं जनाब। एक तो ये फर्क इन्होंने पहचाना है, ठीक है जनाब। दूसरा इन्होंने ये फर्क, अच्छा ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा ये बॉक्स के अंदर फर्क है, ठीक है जनाब। और 3 ही फर्क ढूंढ सके हैं। अच्छा चौथा, अच्छा उधर विंडो नहीं है, 4 हो गए। और 5वां जो ये है जनाब, ठीक है जनाब। हमारे सियालकोट वालों ने तो 5 फर्क ढूंढ लिए हैं। अब चलेंगे हम अपने पेशावर वालों की तरफ। पेशावर वालों ने भी 1 2 3 4 और 5 जनाब, जबरदस्त। दोनों टीमों ने 5-5 फर्क तलाश कर लिए हैं और 5-5 नंबर हासिल कर लिए हैं। मगर अब हम ये देखते हैं कि ये ज़ियारत है कौन सी, कहाँ है दुनिया में, इसके पीछे कौन से बुजुर्ग का वाकया है, कुछ उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं है सहाबा औलिया की सरज़मीं। कायरो जिसको हम कहते हैं, एक हसीन इम्तिजाज है जदीद और पुरानी इमारतों का। तहजीब भी दोनों नजर आती हैं यहाँ। मजहबी लोग भी बड़े शानदार नजर आते हैं। पर्दा भी इस्लामी बहनों में नजर आता है, मगर मॉडर्नाइज भी है। यानी ये क्या कहा जा सकता है कि 2 तरह की हमें यहाँ पर तहजीब मिलती हैं, 2 तरह के लोग मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि यहाँ पर फिर वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, फिर ये इल्मो अदब का मरकज़ बन जाए, फिर यहाँ पर अमल की बहारें आ जाए इंशाअल्लाह। उलमाए किराम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के शुयूख भी कोशिश कर रहे हैं। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह कि सुन्नतों का दौरा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह करोड़ों शाफियों के पेशवा 150 सिने हिजरी में या तो मिना में पैदा हुए या आपके बारे में आता है यमन में पैदा हुए। गोया आप ताबई थे, ताबईन की दीदार करने की सआदत आपको मिली। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस शाफई का ताल्लुक खानदान कुरैश से है। हजरत अब्द मुनाफ पर जाकर इनका नसबनामा नबी पाक अलैहिस्सलाम के नसबनामे से मिल जाता है। आप अपने जद्दे आला हजरत शाफी बिन साइब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निस्बत से शाफई कहलाए। इमाम शाफई ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक खत्म कर लिया। 10 साल की उम्र में मौता इमाम मालिक हिफ्ज कर लिया। अल्लाह अकबर। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं। क्या अजीम हस्ती है इमाम शाफई, करोड़ों शाफियों के पेशवा, सच्चे आशिक रसूल। अल्लाह पाक इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए और उनकी कब्र मुनव्वर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और आइए चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 32 पेशावर, 42 सियालकोट। आखिरी सेगमेंट है नसीब अपना अपना।
العلم نور العلم نور. जनाब दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लाम भाई आएंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पर और आपस में कोई मशवरा नहीं करेंगे. आप उधर चले जाएं, एक इस्लाम भाई इधर आ जाएं. और तौसीफ साहब से गुजारिश है, आइए पर्ची निकालेंगे और पर्ची कैमरे की तरफ खोलकर बताएंगे कि क्या उसमें लिखा हुआ है. के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दी है ये मकसद मेरा. जनाब कलाम तौसीफ साहब आइए अपनी जगह पर, देखते हैं आपसे कौन से कलाम का सवाल है. इस नात का पहला मिसरा बताएं. नाते सुल्ताने मदीना गुनगुनाते जाएंगे. अमीर अहले सुन्नत के मक्ते का ये एक मिसरा है और आपने दूसरा पूरा करना है. नाते सुल्ताने मदीना गुनगुनाते जाएंगे. 5 सेकंड रह गए जनाब. शेर ये है, हश्र में जेरे लिवाए हम्द ए अत्तार हम, नाते सुल्ताने मदीना गुनगुनाते जाएंगे. अल्लाह वो मौका हमें नसीब फरमाए. गलती हो गई है जनाब, बारी है हमारे सियालकोट वालों की. पर्ची निकालेंगे और देखेंगे कि क्या पर्ची में सवाल मौजूद है. कुछ भी हो सकता है सवाल. आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा. जी कुरानी मालूमात. चलें जनाब आइए. सवाल यह है सियालकोट वालों से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन सी सूरत का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल का हिस्सा है. अल्लाह अकबर. मैं समझा शायद जवाब नहीं दे सकेंगे. बिल्कुल सही जवाब दिया, सूरह नमल का हिस्सा है. जवाब दुरुस्त दे दिया है. पेशावर वालों की बारी है. आइए जनाब पर्ची निकालिए. कुरानी मालूमात. चलें जनाब अपनी जगह पर तशरीफ लाइए. आपसे सवाल यह है, कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन. सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है. कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन को कहा जाता है. आइए जनाब सियालकोट की टीम के इस्लाम भाई आएंगे और पर्ची निकालेंगे. मिल गया रहनुमा. जी जनाब पर्ची कुछ ज्यादा लंबी बंद हो गई है. जी हाथ में आपके चूंकि दस्ताने हैं. जी समझाइए मगर इशारों से. आपको कुछ इशारा बताया जाएगा जो आपने अपनी टीम को बताना है. सही साहब आइए. खुद को ऊंचा उड़ा, जीत या हार बक़े. ठीक है, आपने इशारा करना है अपनी टीम को. एक भाई यहाँ मौजूद हैं और एक आपके यहाँ मौजूद है. जी मदीने की खाक. जबान से मदीना. खाके मदीना. जी सैयद साहब बिल्कुल सही जवाब दे दिया है. क्या बात है जनाब सियालकोट वालों की. जनाब आइए पेशावर वाले भाई दोबारा आइए. नूर है. कैमरे की तरफ रुख करेंगे और पर्ची को खोलेंगे. जी दुआएं. चलें जनाब कौन सी दुआ सुनानी है? पेशावर वालों का सवाल यह है कि इल्म में इजाफे की दुआ सुनाइए. अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा. जवाब दुरुस्त दे दिया है. आखिरी सवाल है सियालकोट वालों से. पर्ची निकालेंगे जनाब आकर. है ये मकसद मेरा, दूर है मंजिले, रास्ता है बड़ा, पर कमर बांध ली, मिल गया रहनुमा. जनरल नॉलेज का सवाल है जनाब आपसे. पाकिस्तान के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखायर किस इलाके में हैं?
सुई गैस। बलोचिस्तान के इलाके सुई में जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। बहरहाल हमारा मुकाबला कंप्लीट हुआ। पिशावर वालों से हम यही कहेंगे कि दिल छोटा ना करें, अभी आपके पास एक चांस है, जरा मजबूत तैयारी करें। शायद लंबे सफर की वजह से आप थक गए होंगे, मगर अब अगली इतवार को मुकाबला होगा तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है भरपूर तैयारी करने का। जब 3 टीमें मुकाबले में आएंगी, सियालकोट वालों को मुबारकबाद पेश करेंगे, आप अगले राउंड में पहुंच गए, दोनों टीमें आगे आ जाएं माशाल्लाह। हुजूर, आज आपने ये इतवार का जो प्रोग्राम हमारा हुआ है, तो क्या बुध के या जुमेरात को नहीं होगा प्रोग्राम? जी इंशाल्लाह पीर और मंगल को होगा, बुध को नहीं होगा। बुध को मरकजी मस्जिद शूरा का मशवरा जारी होगा, इसलिए बुध को गैप होगा, और जुमेरात को भी नहीं होगा क्योंकि जुमेरात को 31 दिसंबर है, तो उस दिन अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होगा। न्यू ईयर नाइट इंशाल्लाह मदनी चैनल के साथ मनाएंगे। तो पीर और मंगल को ज़हनी आजमाइश यानी कल और परसों होगा, और फिर इंशाल्लाह इतवार को होगा। तो बहरहाल हमारे साथ आपने शामिल रहना है, बरकतें लूटनी है। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड किस तरह आगे तक चलता रहा। जनाब 34 पिशावर, 48 सियालकोट, बड़े डिफरेंस के साथ सियालकोट वाले आगे गए हैं, मगर पिशावर वालों ने हिम्मत नहीं हारनी, और वैसे भी पिशावर वाले हिम्मत नहीं हारते हैं। ये हिम्मत वाले लोग होते हैं, इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और हो सकता है बड़ी जानदार तैयारी के साथ वापस आएंगे। जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई की कुरानदाजी होती है वो भी आपको बताते हैं, मगर उससे पहले मदनी चैनल के इस सिलसिले की जो क्विज एप्लीकेशन है उसमें एक सवाल किया जाता है, क्विज की कुरानदाजी देखते हैं। पर कमर बांध ली, मिल गया रहनुमा। जनाब ये 5 आईडीज को आप नोट कर लीजिए, और इन 5 आईडीज में से देख लें कि कहीं आपका नाम भी है कि नहीं। आज का सवाल ये था कि अतीक किस सहाबी का लकब है, तो सही जवाब इसमें था सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लकब है। अब जनाब एक सवाल किया गया था एसएमएस के जरिए, सैयद साहब बताइए जवाब क्या था और उसमें खुशनसीब कौन है जिनको इनाम मिलेगा। सवाल ये था, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस चीज को खौफनाक बला, तबाकुन बीमारी और इल्म की बरकतों को खत्म करने वाली फरमाया? जवाब, उस्ताज की नाशुक्री। दुरुस्त जवाब देने वालों में सैयद नेअमत शाह मीरपुर खास, मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रावलपिंडी, बिनते करीम बख्श अतारी वाकेंट, रिजवान अतारी डेरा गाजी खान, बिनते उबैद गुजरांवाला, बिनते सलीम हमजा वाला, बिनते शौकत नियाजी मुल्तान शरीफ, बिनते शफकत अतारी फैसलाबाद, उम्मे मिशकात फातिमा फलियाँ, अहमद हसन मियाँवाली, बिनते रियाज शाहपुर, कैसर खानपुर, जहांगीर अत्तारी मुल्तान शरीफ, मोहम्मद अहमद अत्तारी वाकेंट, हाफिज अफनान अत्तारी बिन मंसूर अत्तारी कराची, बिनते मोहम्मद रमजान कुंडरी सिंध, उम्मे अतफा नूर फैसलाबाद, उम्मे हुरैरा अत्तारिया इस्लामाबाद, बिलाल कमर आरिफ वाला। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी, और देखते हैं किन खुश नसीब का नाम है। जी, बिनते शफकत अत्तारिया फैसलाबाद। बिनते शफकत अत्तारिया फैसलाबाद, आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। चले जनाब, अब बारी है एक और सवाल करने का जिसका जवाब कल आपको बताया जाएगा और कल कुरानदाजी भी होगी। सवाल ये है, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? इसका जवाब आपने एसएमएस के जरिए देना है। नाजरीन, वक्त हुआ है फैजान अबू हुरैरा आज के इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी, वैसे तो सारे ही बड़े अच्छे थे, मगर अरशद भाई को जो कि माशाल्लाह सियालकोट से आए हैं, इनको ये तोहफा पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ मौजूद हाजिरीन और नीचे जो मौजूद हाजिरीन उनके दरमियान कुरानदाजी होगी। जी, यहाँ पर कुरानदाजी फरमाएं। टोकन नंबर 003, टोकन नंबर 003, नीचे भी कुरानदाजी फरमाएं शहबाज भाई। 90 नंबर। जी जनाब, 90 वाले आ जाएं, और जनाब बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। जी, मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। दूर दुनिया के जो
شان تر عطا کر دو جو سنتا سلام کہیں گے آپ عطار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر زیر دام ہے سگے عطار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر زیر دام ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے جو سلمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا العلم